Good morning, students. Today we will study our next chapter, that is chapter number 5, shapes and designs. In this chapter we will study about shapes and the different designs which we can make from them. Okay, now at first look at this. What is this? This is a rectangle. Okay, so this is a rectangle. How many sides it has? 1, 2, 3, 4. Okay, it has 4 sides, and students, sides are also known as edges. ये जो sides हैं इनको हम edge भी बोलते हैं. तो इसके कितने edges होंगे? 4. या फिर sides कितनी होंगी? 4. edge और side में आपने confuse नहीं होना है. edges are same as that of sides. Okay, now look for its corners. Corners where 2 lines meet. ये वाली 1, 2, 3, 4. It has 4 corners. Okay, this is a rectangle. It has 4 sides or 4 edges and also 4 corners. Okay, students, now look at this. What is this? This is a circle. Now, how many edges are there? Students, as it is a circle, it has only curved edge, but there are no edges. ओके, तो यहाँ पर इसके एजेस कितने होंगे? कोई भी एजेस की नहीं है. ठीक है, इसकी साइड ही पूरी की पूरी ये एक ही है, तो इसको हम एजेस में कितने लिखेंगे? 0. तो सर्कल है, जो राउंड शेप्स होंगी उनके सर्कुलर कर्व्ड एज होते हैं, लेकिन जब उसको हम काउंट करते हैं वो काउंट में नहीं आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर. नाउ हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4. 4 sides, or sides are also known as edges. So it has 4 sides and 4 edges. And how many corners? 1, 2, 3, 4. It has 4 corners. Okay. So what is the difference between this rectangle and square? Students, a square has all the sides of equal length, but a rectangle has opposite sides of equal length. सर, उसमें क्या होता है? स्क्वायर में क्या है कि सारी की सारी जो साइड्स हैं वो एक जैसी लेंथ की हैं, लेकिन जो आपका रेक्टेंगल है उसमें ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है. ओके, नाउ लुक एट दिस. दिस इज अ triangle. Now, how many sides are there in a triangle? 1, 2, 3. There are 3 sides. Now, how many corners? 1, 2, 3. 3 sides and 3 corners. Now, what is this? This is oval. Okay, egg like shape जो होती है उसको हम oval कहते हैं, तो इसके भी edge नहीं है. So, students, our next topic is edges and corners. ओके, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत जाना, तो चलिए अब देखते हैं. सबसे पहले मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पर एक ट्रायंगल. नाउ, वेदर इट हैज कॉर्नर्स, तो क्या इसके कॉर्नर हैं? यस, 1, 2, 3. यस, इट हैज कॉर्नर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कॉर्नर्स. तो कितने कॉर्नर हैं? 1, 2, 3. 3 corners are there. Next question is number of edges. How many edges are there? तो आपको एज फाइंड आउट करने हैं, तो एज कौन से होंगे? 1, 2, 3. There are 3 edges. Okay, I have written here 3. Again, look at shape number 2, square. Whether it has corners? Look at this. 1, yes, it has corners. These are the corners of square. So whether it has corners? Yes. Now, number of corners? 1, 2, 3, 4. Number of corners? 4. Again, number of edges. Edges means sides. 1, 2, 3, 4. 4 sides. Again, look at this rectangle. Whether it has corners? Yes, it has corners. These are the corners of rectangle. Whether it has corners? Yes, it has corners. And the number of corners? There are 4 corners. अभी हमने पढ़ा 1, 2, 3, 4. 4 corners. And the number of edges? These are the edges. 1, 2, 3, 4 edges, and these are points are
corners. Again, look at this circle. Circle has no corner and no edge, and number of edges is equal to 0. Again, look at this ball, oval, egg. तो ये सारी की सारी जो राउंड शेप्स हैं, इसके कॉर्नर जो हैं वो आपके नहीं हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो. एंड द नंबर ऑफ कॉर्नर जब है ही नहीं तो क्या लिखोगे? 0. एंड द नंबर ऑफ एजेस वो भी क्या लिखेंगे? 0. अगेन look at this sheet of paper. This is a sheet of paper. Whether it has corners? Yes, it has corners. Yes. And number of corners? 1, 2, 3, 4. Okay, there are 4 corners. And the number of edges? Edges is equal to 1, 2, 3, 4. There are 4 edges. Okay. Now look at this shape. This is eraser. Okay. So now look at this. This is eraser. Eraser has it corners? Yes, it has corners. Where are the corners? These are the corners. 1, 2, 3, 4. Again 5, 6, 7, 8. How many corners are there? There are 8 corners. Now how many edges are there? So at first we will see its front part. तो इसमें आप देखिए कितने एजेस हो गए. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4. ऐसे ही जब हम इसको पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4. आगे और पीछे के मिलाकर 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8. अब जब हमने आगे का इसको मिलाया तो हमने ये वाली चीज काउंट कर ली, पीछे का मिलाया तो ये वाली चीज भी काउंट होगी दोनों सिरों की, लेकिन हमारी ये वाली चीजें काउंट नहीं हुई हैं. तो अब हम इसको भी काउंट करेंगे. सबसे पहले आगे वाले की देखिए कितनी साइड्स हैं? 4. पीछे वाले की कितनी साइड्स हैं? 4. अब ये साइड्स वाली जो बच गई इनको भी काउंट करो. 1, 2, 3, 4. तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 ये वाली हो गई, 4 ये, 4 + 4 8. 8, 9, 10, 11, 12. तो इसके कितने एजेस हो जाएंगे? 12 एजेस आर देयर. नेक्स्ट इज डाई. स्टूडेंट्स, डाई जो है इसकी शेप भी इरेजर की ही शेप की तरह होती है. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? क्या इसके कॉर्नर्स हैं? यस, यू विल राइट हियर यस. एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू, तो वही जैसे इरेजर की सेम शेप वाली इस तरह की जो भी बॉक्स वाली शेप बनेगी उसमें आप सेम नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ एजेस लिखेंगे. तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए 8, वैसे ही नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? 12. जो कि मैंने आपको इरेजर के केस में करके बताया, वैसे ही डाइस का भी ऐसे ही होगा. इसी तरह से अगर आपको आपकी बुक के बारे में बोला जाए कि आप अपनी बुक का निकाल के बताइए कि कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स या एजेस हैं, तो जो बुक की शेप है वो भी आपकी इसी तरह की होती है. ठीक है, तो इससे थोड़ी बड़ी होती है. तो आप इसको भी बुक के लिए भी क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कॉर्नर्स यस लिखेंगे, नंबर ऑफ एजेस क्या लिखेंगे? 12. और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने लिखेंगे? 8 लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको इरेजर के केस में करके बताया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट योर बुक पेज नंबर 60. ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्लैपर बनाना सिखाया हुआ है. तो जिस तरह से इसमें स्टेप्स बताए हुए हैं आपने भी इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने एक क्लैपर बनाना भी है. और आप बच्चे क्लासेस में भी इसको पहले से भी बनाते आ रहे हैं. ओके, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं. Now look at this. Color the clown following the directions given below. यहाँ पर एक क्लोन दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है? इसको इसी तरह से कलर्स करने जैसे कि यहाँ पर बताए हुए हैं. जैसे कहीं पर भी आपको ट्रायंगल शेप दिखे तो वहां आपने कलर कौन सा करना है? रेड. स्क्वायर शेप दिखे तो वहां कलर कौन सा करना है? येलो. रेक्टेंगुलर शेप दिखे तो कलर कौन सा करना है? ब्लू. और अगर आपको सर्कुलर शेप दिखे तो कलर कौन सा करना है? ग्रीन. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपको यहाँ पर सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं उनमें कलर कौन सा किया हुआ है? ग्रीन. और जितने भी आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं उनमें कलर कौन सा किया है? रेड. और जितने भी आपको इसमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं उसमें कलर कौन सा किया हुआ है? ब्लू. और जितने भी आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं उसमें कलर कौन सा है? येलो. तो ये भी आप इजीली कर. पेज नंबर 63 जो कि अभी हमने किया कि यहाँ पर आपको बताया कि एज होता क्या है, तो वो हम अभी पहले कर चुके हैं. जैसे ये बुक है तो ये इसका एज हो गया, ये भी इसका एज हो गया, ये सारे इसके एजेस है. लेकिन आपको ये बताया हुआ है कि एज होता क्या है, साइड कौन सी है.
नेक्स्ट इज चेयर। तो चेयर में एज कौन सा है, ये भी इसका एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये सारे के सारे क्या हैं, एजेस है। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज काइट, और काइट में भी एजेस होते हैं। और कौन से एजेस हैं ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो इसके एजेस कौन से होंगे, स्ट्रेट एजेस होंगे। तो जो स्ट्रेट थिंग्स होंगी उनके एजेस कैसे होंगे, स्ट्रेट। नाउ लुक एट दीज थिंग्स, दिस इज व्हील। तो व्हील के शेप का है, राउंड शेप का है, तो इसके जो एज है वो कौन सा है, कर्व्ड एज है, ठीक है। और ये क्या है, बैंगल और अ प्लेट, तो इसके एज कौन से हैं, सर्कुलर एज है, तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड एजेस। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेट एजेस किन चीजों के होते हैं और कर्व्ड एजेस किन चीजों के होते हैं। जैसे आपने अभी देखा सर्कुलर चीज है कोई, जैसे बैंगल है, तो उसका एज कैसा होगा, राउंड एज। कोई प्लेट है, उसका एज कैसा होगा, राउंड। व्हील है सामने आपको दिख रहा है, उसका एज कैसा है, राउंड। और वैसे ही अब आपको बताना है स्ट्रेट एजेस वाली चीजें, तो आप बुक लिख सकते हैं, आप इरेजर लिख सकते हैं, आप चेयर लिख सकते हैं, आप टेबल लिख सकते हैं। वो सारी की सारी कैसे एज होते हैं, उनके स्ट्रेट एज होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। यस, आपने अभी देखा जैसे बुक वगैरह होगी या पेज है, तो जिनके भी स्ट्रेट एजेस होते हैं उनके कॉर्नर्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, यस। सी पार्ट, डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स। नो, जो कर्व्ड एजेस हैं उनके कॉर्नर नहीं होते हैं, ठीक है। ये एज जैसे हैं कर्व्ड, ठीक है, लेकिन इसके कॉर्नर नहीं होते। तो आप क्या लिखेंगे, नो। ट्राई टू फाइंड थिंग्स with both which have both straight as well as curved edges। तो आपको अब चीजें फाइंड आउट करनी है जिनके स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एट फर्स्ट मैंने क्या शेप ड्रॉ की हुई है, कोन शेप ड्रॉ की हुई है। दूसरे नंबर पर मैंने ड्रॉ किया है सिलेंडर, और तीसरे नंबर पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बोथ स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पेन है, तो इसके आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट एज है इस तरफ से, लेकिन जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। तो इसके सर्कुलर एज भी है, मतलब कर्व्ड एज भी है और स्ट्रेट एज भी है। इसी तरह से आपका स्केच पेन हो गया, आपका मार्कर हो गया, तो उसके कर्व्ड एज भी होते हैं और स्ट्रेट एजेस भी होते हैं। अब ये बैंगल है, तो इसका कौन सा एज है, कर्व्ड एज है। अब आपके पास एक छोटा सा डिब्बा है, तो इसमें आप देख सकते हैं ढक्कन की तरफ से आपको कर्व्ड एज दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको इसमें स्ट्रेट एज भी दिखाई देते हैं। तो ये इसमें भी क्या है, स्ट्रेट एंड कर्व्ड बोथ एजेस। ओके, जैसे वाटर बॉटल होगी तो उसमें भी स्ट्रेट एजेस आर ऑल्सो देयर एंड कर्व्ड एजेस आर ऑल्सो देयर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका बुक्स पेज नंबर 65, जो कि अभी हम करके हटे हैं। जैसे डाइस हमने ड्रॉ किया था, बॉल, इरेजर, एग, शीट ऑफ पेपर, तो इसमें वही है कि वेदर इट हैज कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ये बुक में आप अपने आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड एजेस। टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स, आपने उनको देखना जिनके कॉर्नर्स हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट शेप देखिए, तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर यहाँ दिखाई दे रहा, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ये जो शेप है इसमें कॉर्नर है, तो मैंने इसको टिक किया है। तो डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस, यस। तो इसमें देखो इधर वाली साइड जो है वो कर्व्ड लाइन भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। ओके, अब ये वाली शेप देखिए, तो इसमें कॉर्नर्स है, यस, 1 2 3। ये कौन सी शेप है, जैसे आपकी परांठे की शेप होती है, ये वही है। तो इसके पास कॉर्नर्स हैं, क्या इसके कर्व्ड एज हैं, हाँ देखो ये थोड़ी थोड़ी कर्व इसमें आपको दिखाई दे रही है। ओके, एंड लुक एट दिस शेप, वेदर इट हैज corners 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, it has 12 corners। और इसके क्या कर्व्ड एजेस हैं, नो, इसका कोई भी एज जो है वो कर्व्ड नहीं है। ओके, कॉर्नर है लेकिन कर्व्ड एज नहीं है। उसके बाद ये वाली शेप देखिए, तो इसमें क्या है ना, तो इसमें कॉर्नर नहीं है लेकिन इसके कर्व्ड एज हैं। ये वाली शेप देखिए, इसमें क्या है, कॉर्नर्स हैं लेकिन कर्व्ड एज है, नो। ये वाली शेप देखो, इसमें क्या, ये कौन सी शेप है, ओवल, इसमें कोई, इसके सारे एजेस क्या है, कर्व्ड है लेकिन इसमें कॉर्नर नहीं है। दिस इज अ व्हील और दिस इज अ बैंगल, ठीक है, इसके बीच में वैसे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, इसमें कौन से एजेस हैं,
कर्व्ड एजेस हैं. ओके. Now question is, using only straight lines, can you draw a figure which has corners? आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को यूज करना है और उससे आपको कोई फिगर बनानी है. जैसे कोई भी फिगर आप बना लो, तो क्या आप ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कॉर्नर्स हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. कर्व्ड एज हमें चाहिए होगा अगर हमें कॉर्नर नहीं चाहिए. So students, this is your half chapter and we have studied about edges and corners and about a few shapes. Okay. In our next video we will complete the remaining chapter. Thank you.